Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Shri Shyam Online Classes. I, Sanjeev Gupta, welcomes you all, my friends, colleagues, teachers, and my dear students. In my last video lesson, I taught you about verb and its two main kinds. Today we shall discuss about verb, their main kinds, main verb and auxiliary verb, and their various types. But before that, today's success in life mantra. My dear students, today's success in life mantra is importance of time. There is a famous statement of Geoffrey Chaucer, famous English poet of 14th century. Time and tide wait for no man. And it has become a proverb now. This proverb highlights the importance of time. There is nothing more precious than time. Time and tide both never wait for anyone and never come back. Time is more valuable than money. If money once lost, it can be earned again. But if time is lost, it will never return or come back again. So we must understand the value of time and should make proper utilization of it in the right direction. इसी विषय पे हमारे हिंदी के भी कुछ विद्वान कवियों ने काफ़ी कुछ लिखा है। एक बहुत प्रचलित कहावत भी है, समय मिलाए धूल में समय दिलाए ताज, समय संग जो है चला हुआ उसी का राज। अर्थात हमें हमेशा समय के महत्व को समझना चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए, और जो समय का महत्व समझते हैं उनको जीवन में आगे सफलता मिलती है और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो उसको गंवा देते हैं वो पछताते रह जाते हैं। इसके अलावा महान कवि रहीमदास जी कहते हैं, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। अर्थात रहीमदास जी ये कहना चाहते हैं कि समय का सदुपयोग करने से समय के समान लाभदायक कुछ नहीं है, और समय गंवा देने की भूल के समान कोई दूसरी भूल नहीं है। रहीमदास जी कहते हैं, जब चतुर लोगों से भी समय गंवाने की भूल हो जाती है तो ये दुख उनके हृदय में खटकता रहता है और ये दुख उन्हें जीवन भर परेशान करता रहता है। इसके अतिरिक्त महान कवि और संत कबीरदास जी ने भी बहुत प्रसिद्ध दोहा इस विषय में कहा है, जो हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए। कल जो काम करना है उसे आज ही कर देना चाहिए, और आज जो काम हमें करना है उसको अभी कर देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि पल में ही अगर प्रलय आ जाएगी या हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे, किसी परेशानी में पड़ जाएंगे, तब हम उस काम को कब कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है हमारा आज का सक्सेस इन लाइफ मंत्र। जीवन में समय का महत्व, और आप सब इस महत्व को समझिए और समय का सदुपयोग कीजिए। समय का सदुपयोग करने से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। Now we are going to discuss about our today's topic, which is verb, its kinds, its two kinds, main verb and auxiliary verb, and their various types. First of all, we shall discuss about main verb and its various types. Main verb is of various types, as you are looking in this diagram. First group is regular verb and irregular verb.
Second is dynamic verb and static verb. Third is transitive verb and intransitive verb. And fourth is finite verb and non-finite verb. So these are various types of main verbs. And now we shall see about auxiliary verb and its types. Auxiliary verb is of mainly two types, primary auxiliary verb and modal auxiliary verb. Now again, we shall see these various types of main verbs. So first of all, we shall talk about regular and irregular verb. What is a regular verb and what is irregular verb? So here we go. Regular verb, the verbs which are formed their past and past participle forms by adding ed in the end are called regular verbs. The verbs which are formed their past and past participle form by adding ed in the end are called regular verbs. The verbs which have ed in the end, they are regular verbs. वो क्रियाएं जिनकी पास्ट या सेकेंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म बनाई जाती हैं बाय एडिंग ईडी इन द एंड, उनके अंत में ईडी जोड़कर आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. वो सभी क्रियाएं रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं. एंड दे आर थाउजेंड्स, बहुत सारी है संख्या में. मोस्टली वर्ब्स आर regular verbs. For example, we shall see play, खेलना, played second form, played third form, walk चलना या टहलना, walked walked second third form, dance नृत्य करना, danced danced, walk कार्य करना, worked worked, and so many others. तो प्रिय विद्यार्थियों, अधिकांश वर्ब्स रेगुलर वर्ब्स होती हैं जो जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उनके अंत में ईडी ऐड करके ईडी लगाकर बनाई जाती हैं. नाउ वी शैल सी इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब क्या होती है? व्हाट आर इरेगुलर वर्ब्स? द वर्ब्स which are formed their past and past participle forms in different ways are called irregular verbs. वे क्रियाएं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स बनाई जाती हैं अलग अलग तरीकों से आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स. अलग अलग तरीकों से बनाई जाती हैं जिनके लास्ट में ईडी लगाकर हम उनकी फॉर्म्स नहीं बना सकते, वे सभी वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं. ये संख्या में कम होती हैं, अबाउट 100 और 150. सो वी कैन इजीली लर्न देम, एंड बाय लर्निंग देम वी आर एबल टू प्रिपेयर आवर रेगुलर वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, पुट रखना, सेकेंड फॉर्म पुट, थर्ड फॉर्म पुट. हिट मारना या पीटना, सेकेंड फॉर्म हिट. सो फर्स्ट ग्रुप इज ऑफ दोज वर्ब्स विच हैव ऑल द थ्री फॉर्म्स आर सेम. पहला ग्रुप उन वर्ब्स का है जिनकी तीनों फॉर्म्स समान होती हैं. और भी वर्ब्स ले सकते हैं. बैट शर्ट लगाना, बैट बैट बैट, शर्ट बंद करना, शर्ट शर्ट शर्ट. सो दीज वर्ब्स आर इरेगुलर वर्ब्स. सेकेंड ग्रुप इज गेट, गॉट, गॉट.
प्राप्त करना, पाना, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट. सिट, बैठना, सेकंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म सैट. लूज, खो देना. लॉस्ट, लॉस्ट, सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट. So it is second group which have second and third form are same. Past and past participle forms are same. ये irregular verbs का दूसरा ग्रुप है जिनकी सेकेंड फॉर्म, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म समान है. टीच, टॉट टॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट एंड अदर्स. नेक्स्ट ग्रुप इज गो, वेंट, गॉन, जाना, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन. टेक, प्राप्त करना, लेना. टुक, टेकन, सेकंड फॉर्म टुक, थर्ड फॉर्म टेकन. गिव, देना, सेकंड फॉर्म गिव, थर्ड फॉर्म गिवन. सी, देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन. सो इट इज थर्ड ग्रुप which have all the three forms are different. ये irregular verbs का तीसरा ग्रुप है जिसमें तीनों ही फॉर्म्स जो हैं अलग अलग हैं. गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, गिव, गेव, गिवन, सी, सॉ, सीन, राइज, रोज, राइजन and others. So this way we can easily understand regular and irregular verbs and we are able to learn them easily. Now my dear students, we shall discuss our next two types which are also very important, and these two types are dynamic and static. Dynamic verb. What is a dynamic verb? Actually, dynamic, the word, it is an adjective, and dynamic means something moving or changing. Dynamic का मतलब होता है कुछ ऐसा जो लगातार बदलता रहता है या मूव होता रहता है या चेंज होता रहता है, चलता रहता है, हिलता रहता है. दैट इज कॉल्ड डायनेमिक. एंड डायनेमिक वर्ब मीन्स ए वर्ब विच इज चेंजिंग एंड मूविंग. सो डायनेमिक वर्ब इज ए वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस. डायनेमिक वर्ब हैज ए स्टार्ट एंड एन एंड. डायनेमिक वर्ब वो वर्ब होती है या वो क्रिया होती है दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस, जो एक्शंस के बारे में बताती है, कामों के बारे में बताती है, कार्यों के बारे में बताती है, और एक्टिव कार्यों के बारे में बताती है, द एक्शंस विच आर एक्टिव. सो डायनेमिक वर्ब हैज़ ए स्टार्ट एंड एंड. इसीलिए डायनेमिक वर्ब जो है उसका एक शुरुआत होती है उसकी और उसका एक अंत होता है. Those verbs are called dynamic verbs. For example, we can take eat. Eat. It is a dynamic verb. Read, पढ़ना. Write, लिखना. Play, खेलना. Jump, कूदना. Run, दौड़ना या भागना. Talk, बातचीत करना. Watch, कुछ देखना, ध्यानपूर्वक देखना. Come, go, आना, जाना. स्विम, तैरना. फ्लाई, उड़ना. हिट, पिटना. कॉल, किसी को पुकारना या किसी को बुलाना. सो ऑल these verbs have actions that is moving or changing, and these actions have a start and an end. So that's why these verbs are called dynamic verbs, or these verbs are known as dynamic verbs. Next, we shall talk about stative verb. What is a stative verb? एक stative verb क्या होता है? Actually, stative is a verb. It is a word. It is an adjective which says something that has a state. So we can say stative verb is a verb which describes a state of being or condition which is not changing. Stative verb ऐसा verb होता है, it describes, ये वर्णन करता है, ये बताता है a state of being, एक अवस्था के बारे में, और condition या एक शर्त के बारे में
एक रुकी हुई अवस्था के बारे में, एक ठहरी हुई अवस्था के बारे में या किसी शर्त के बारे में ये स्टैटिक वर्ब हमें बताता है, विच इज़ नॉट चेंजिंग, जो चेंजिंग नहीं है, जो बदलता नहीं रहता है। एक ठहरी हुई अवस्था, ए कंडीशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग विच इज़ नॉट मूविंग और विच इज़ नॉट चेंजिंग, एक ऐसी अवस्था जिसमें हिला डुलना नहीं है, मूवमेंट नहीं है और जिसमें कोई लगातार होने वाला बदलाव नहीं है। सो दोज वर्ब्स आर कॉल्ड स्टैटिक वर्ब और दोज वर्ब्स आर नोन एज स्टैटिक वर्ब्स। तो ऐसी सभी वर्ब्स स्टैटिक वर्ब्स कहलाती हैं जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है, विच इज़ स्टैटिक, जो स्टैटिक है, जिनमें स्थायित्व है, जिसमें एक शर्त है, जिसमें एक कंडीशन है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, जिसमें कोई लगातार बदलाव नहीं होता रहता है। वो सभी वर्ब्स जो है इसी ग्रुप में, इसी टाइप में रखे जाते हैं जिन्हें हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। स्टैटिक मीन्स समथिंग एज हैविंग ए स्टेट। स्टैटिक का अर्थ होता है कि कुछ ऐसा जिसमें एक अवस्था हो, एज आई टोल्ड अर्लियर, इट इज़ ए कंडीशन, इट इज़ ए स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज़ नॉट मूविंग और चेंजिंग। स्टैटिक वर्ब में कोई मूवमेंट नहीं है, कोई लगातार होने वाला बदलाव नहीं है, एक स्थायित्व है, एक शर्त है या एक अवस्था है, मात्र एक अवस्था है, रुकी हुई अवस्था है, दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक वर्ब्स आरंट यूजुअली यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स। स्टैटिक वर्ब्स का आमतौर पे या सामान्यतया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इनका उपयोग नहीं होता है। They aren't usually used in ing form or continuous forms. They often relate to thoughts, emotions, senses, possessions and measurements. और वे आमतौर पर संबंधित होते हैं थॉट्स, मानसिक क्रियाओं से, मानसिक क्रियाएं, दिमाग से जुड़ी हुई क्रियाएं, विचारों से, इमोशंस, भावनाओं से, सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियों से, पोजेशंस, अधिकार से, एंड मेजरमेंट्स या फिर मापन से, मापन वाली क्रियाएं, पोजेशंस, अधिकार वाली क्रियाएं, ज्ञानेंद्रियों वाली क्रियाएं, सेंसेस, इमोशंस, भावनाओं वाली क्रियाएं, एंड थॉट्स और विचारों वाली क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, ये सभी क्रियाएं जो हैं जिनमें स्थायित्व है, जिनमें कोई मूवमेंट नहीं है, विच इज़ नॉट चेंजिंग और मूविंग, ये सभी क्रियाएं जो है स्टैटिक वर्ब्स के अंतर्गत रखी जाती हैं। These verbs are known as static verbs. For example, we can take many verbs which are related to our thoughts, our emotions, our senses, our possessions and measurements. These all verbs which are static, so we can take them easily and we can understand them easily. For example, we can say know, जाना या समझना, a mental condition, a mental verb, a verb related to thoughts, mean अर्थ होना, मतलब होना, again related to our mind, think सोचना समझना, understand समझना, these verbs are related to our mind, so mental verbs which is not which are not changing, which are not moving, so they are known as static verb. Doubt, संदेह करना, like पसंद करना, लव प्रेम करना, हेट नफरत करना, सो विश इच्छा करना, दीज वर्ब्स आर रिलेटेड टू आर इमोशंस और सेंसेस। सो ये क्रियाएं ये हमारे इमोशंस से, हमारी भावनाओं से संबंधित है, लाइक पसंद करना, लव प्रेम करना, हेट नफरत करना। दे आर नॉट मूविंग और दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर हैविंग ए स्टेट ऑफ बीइंग, उनमें एक अवस्था वाली बात है, एक ठहराव वाली बात है। सो दीज आर अगेन स्टैटिक वर्ब्स। विश इच्छा करना, वांट चाहना, फील महसूस करना, हियर सुनना, सो फील हियर, दीज वर्ब्स आर रिलेटेड टू आवर सेंसेस, हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित, फील महसूस करना और हियर सुनना हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित, रिलेटेड टू आवर सेंसेस। लुक देखना, हमारी नेत्र से संबंधित क्रिया, हमारी ज्ञानेंद्रिय से संबंधित क्रिया। सी देखना, स्मेल सूंघना या महक लेना, हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। वर्ब टेस्ट स्वाद लेना,
हमारी टंग से, हमारी जीभ से रिलेटेड वर्ब. सो अगेन ए एग्जांपल ऑफ स्टेटिव वर्ब. बिलोंग, संबंधित होना. पोजेशन, ए वर्ब रिलेटेड टू और पोजेशन, अधिकार वाली क्रिया. हैव, रखना. ओन, प्राप्त करना, अधिकार में रखना. अगेन पोजेशन, वर्ब्स रिलेटेड टू पोजेशंस. पजेस, अधिकार में रखना. वे, वजन करना. ए वर्ब रिलेटेड टू मेजरमेंट, मापन से संबंधित एक क्रिया. सो दीज वर्ब्स which are not changing or moving, these verbs are known as stative verbs. So my dear students, that's all for today. Stay home, stay safe, keep learning. Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Shri Shyam Online Classes, and it is totally free. The red colored button which you are looking below my video is subscribe button, so click it and subscribe this channel so that you can get my notifications on time. In our next video we shall discuss about remaining main verbs which are transitive, intransitive, finite and non-finite. So once again, thank you all. जय भारत, जय राजस्थान.